So, so when we are looking at sharing the data with international repository, then obviously we will have to conform to the standard format that will improve the acceptability and also facilitate easy assimilation into the global database. So okay, so this is also interesting. You can see this STA LTA ratio should also allow us to find out what we often call as duration or strong motion duration. So as you can see that and that is also another parameter that is to be recorded and that is to be specified uh, in volume 3 of the data set process data. As you can see, the event is very long, and this is obviously seems to be a better I mean almost we are approaching same level of energy, although still it is much higher, somewhat higher than what we have. So this location is interesting. There is almost no measurement noise. This is interesting. Very good. Where was this installed? Do you have any idea about this particular dam top? Okay. Actually, hello. Yeah. Hello. Good morning, sir. Yeah. Good morning. Yeah, this is from one of our project, Dulasti project, Mm-hmm. and this instrument it is on dam top, Yeah. So and amplitude. I think Pallavi, you have the data from this free field area also from this location. Yeah, yes, sir, we have the data for this event. So that also you shared. Okay. Yeah. So I think it is there I Yeah, in this file. It yeah, should be there. All the yeah, I parameters. had shared some yeah. data. I will check it, sir. I've shared, I think. Yeah. See, I think it is the this same is event or different event. yes, this is free field event, but this Yeah. is different event. I The think it same is event, M sir, both the records I have shared. 3.8. It's the This entire is report. Uh-huh. No, no, this, yeah. This is just okay. okay. So that this is dam top. So this is magnitude 3.8 event. So now you can see the reason we were getting that very nice region was the peak value was much larger, and obviously Mhm. this amplitude of background noise was very small in comparison to the peak value. In this case, peak value itself is 0.0003 G, and that's why you Mhm. see this. So it's a scale factor actually. Yeah, actually, this is different event. हाँ हाँ. Pallavi, you have the data from the same event. ये अभी आएगा नीचे होगा. ये Sir, देख ये फ्री फील्ड आ we गया. ये उसी इवेंट का फ्री Yeah, फील्ड आ गया. yeah. This is 5.1 yeah. 5.1 This is मैग्नीट्यूड एक का ही yeah, साथ है, sir. फ्री फील्ड. yeah, yeah. Sir, you can see the there is one. 3.8 का सर वही वाला है, sir. Yeah. So now you can see actually in free field we are getting 0.01 G, राइट. but in dam top it was zero point 0.1 0.1 G. जी. दैट्स राइट. So, yeah, so almost 10 times. हाँ हाँ. Yeah, सो दैट्स फाइन. एंड yeah. उसमें यानी एक तो ये भी है कि यानी वो 0.01 G and 0.1 G, we still don't know what is the offset of the instrument. इसमें ज़ीरो लाइन अभी हमें पता नहीं है. ये तो इंस्ट्रूमेंट से हमने जस्ट कैलिब्रेट करके मैक्सिमम वैल्यू ले ली Mhm. है ना. ये हो सकता है कि इसका इस इंस्ट्रूमेंट का इस एक्सेलोग्राफ का ऑफसेट थोड़ा अलग हो और इस इंस्ट्रूमेंट का ऑफसेट थोड़ा अलग हो. Uh, uh, ये Offset actually, what ये do you mean by that? ये जो बेस लाइन है इसकी वैल्यू क्या G, है. ac- uh, I अच्छा, think उसका जीरो ले रहे हैं, हाँ सर. the, it is almost it is zero only. I think it is 0.9.34.
Actually, what we can do, we can send you the complete data. What additional information you want? If you want to check what you are talking, we can send you all the data नहीं, ये तो हम करेंगे files. सर, यानी अगला प्रोसेस, अगला स्टेप तो हमारा वही है कि सबको बेसलाइन करेक्ट कर देंगे, तब देन वी विल हैव द ऑल डेटा ऑन द सेम स्केल, सेम बेस, है ना? तो वो Sir, तो I have one submission. Actually, sir, we were recently setting one of our new instruments which was installed in Parvati, one of the projects. हाँ हाँ So, sir, in that while we were setting the records, there was one option that set null offset. That option was there. राइट So we couldn't quite, and since we were not getting the support from the vendors at that time, Uh-huh. so we couldn't identify that what null offset exactly means. Is it the same that setting of the baseline? it is actually to correct for the drift, and any sensor will experience some kind of alignment issues over a period of time, and then it will begin to drift. तो वो null that null offset is- null offset is essentially to shift. I mean this it will आज यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा है, मे बी एक साल बाद वो यहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा. So we ये have जो- to set it in any हाँ, any case. We have to हाँ set हाँ it. वो सेट करने से यानी इट विल फर्स्ट, इसका पहला एडवांटेज तो ये होता है कि अगर ये ड्रिफ्ट ज़्यादा हो गया, देन इट इज़ ईटिंग इनटू द यूजेबल रेंज, Data. Data. है ना? हमारा पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारा यानी वी वुड लाइक टू हैव इट सिमेट्रिकली पोज्ड, but if it starts to drift in one direction, then our effective range in that direction keeps shrinking, और उसकी वजह Okay, से okay, उसकी वजह yeah, से but how actually, but how we can find out that? ये शॉर्ट टर्म तो होगा नहीं सर, ये तो यानी ओवर ए लॉन्ग पीरियड यू कैन नोटिस इन एनी इंस्ट्रूमेंट, No, how long? How long? मे बी इन ईयर, यानी Yeah, annual- actually, all these instruments, these are working almost for the last 4-5 years, हम्म and actually we have not got, I think, much drift. But if you want, then what we can do, we can send you the data which we have recorded 1 or 2 years back, and the recent data, and then we can check whether there is a drift in the instrument or not. ठीक है, वो चेक कर सकते हैं. Because some of the instruments actually, are working even for the last 9-10 years also. Right. But So yeah, but actually we have data from for the last 6 years. 6 years data, I think we will be having from some of the instruments, right. and then we can, because whenever sometimes we also called the manufacturer and the supplier also, and they have checked it, and nobody told that there is any drift, and that's why we are thinking that whatever we are recording, this is the absolute value. ठीक है. I mean, see, Yes, so that will be great. We mostly can verify that. अपने आप तो कुछ होता नहीं है. जी 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 जी. So if the instrument is lying यानी undisturbed and it is in continuous operation, तो यानी there are very little chances that it will experience any drift on its own. जी जी जी. When the drift happens because of mechanical reasons, क्योंकि Yeah, अगर yeah, तो yeah. मशीनरी तो मैकेनिकल कंपोनेंट्स ही है ना. जी तो जी जी जैसे जी हमारे एक्सेलरोमीटर जो हम लैब में यूज करते हैं, जी so जी. we make it a point that we calibrate instrument every time that when we use it, and try to offset the null at जी, जी, जी. every time we use it in our experiments. But that is जी, जी. because we keep on mounting the accelerometers, and then after experiments we will take it out and then store it in the Almira. Next experiment जब करेंगे तब हम फिर से माउंट कर देंगे. जी जी तो जी. ये हैंडलिंग में हो जाता है, और कई बार इट में भी पॉसिबल कि जी. यानी सेम सेंसर भी हम यूज़ नहीं करते हैं, यानी एक्सेलरोमीटर्स तो बहुत सारे हैं, उस समय कौन सा हाँ, हाँ. हाथ में लग गया
वो माउंट कर दिया। नहीं, जैसे हम लोगों के केस में क्या है जी, हम लोगों के केस में क्या है कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना फिक्स्ड हैं और कोई इसमें डिस्टर्ब नहीं होता है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम्म। कभी बहुत बहुत रेयर ये चांस होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर जो है, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स एएमसी में भी हैं, राइट राइट। तो अगर आप सजेस्ट करें तो आप बता दीजिए कि हमको क्या चेक करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जैसे जब भी इनका इंजीनियर विजिट करता है, मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि भाई आप इसको जो है ना, इसकी जो भी कैलिब्रेशन है वो देखिए। जी तो जनरली वो क्या बताते हैं कि आप जो है ना दोनों, मतलब एक बार उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर लीजिए, एक बार जो है ना सेम डायरेक्शन में, तो अगर उसको रिवर्स कर दीजिए तो वो 1G के आसपास कुछ आता है, तो हाँ इसका मतलब ठीक है वो। हाँ हाँ, यानी जी एक्चुअली FBS का यही एडवांटेज है कि जी फोर्स बैलेंस एक्सेलेरोमीटर्स का, कि आपका DC रेंज इज अवेलेबल, कि जी जी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज फ्लैट राइट फ्रॉम 0 हर्ट्ज। जी तो जी 0 हर्ट्ज का फ़ायदा यही है कि यानी वी कैन कैलिब्रेट यूजिंग अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। जी तो 90 डिग्री अगर टिल्ट कर दिया तो रिकॉर्डिंग हमारी 1G आनी चाहिए। इफ़ वी गेट दैट रिकॉर्डिंग देन इट इज़ परफेक्टली फाइन। जी। नहीं, इसमें सर आप अगर कुछ और, मतलब इफ यू वांट कि हम लोग फर्दर और इसके अंदर कुछ चेकिंग करना है या कोई भी कैलिब्रेशन वगैरह है, तो आप थोड़ा हमें एडवाइस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग उतने एक्सपर्ट नहीं है इसमें। नहीं 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 सर, इसमें यानी और कुछ यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से ही हम पीरियोडिकल जब भी आप मेंटेनेंस विजिट पे जाएं तो एक बार इसको, अगर आप एक ये टिल्ट टेबल होता है, हमने एक बना रखा है। हम्म। अगर आप अगली बार रुड़की आए तो दिखाऊंगा मैं। तो एक जी प्लेटफॉर्म जी होता है, उस हिंज पे जी है ना, एक बेस है, उसके ऊपर एक हिंज लगा के उसके ऊपर एक फ्लैट प्लेटफॉर्म लगा दिया है। एंड हम्म। ऑन दैट हिंज वी हैव दिस एंगुलर मेजरमेंट जो ओके। प्रोट्रैक्टर की तरह का, जी सो दैट वी कैन एग्जैक्टली मेजर कि 90 डिग्री टिल्ट हो गया। प्लेटफॉर्म जो ऊपर जी का है वो 90 डिग्री टिल्ट हो जी गया। जी और जी उस जी। प्लेटफॉर्म, फ्लैट प्लेटफॉर्म के ऊपर वी माउंट अवर एक्सलोरोमीटर्स। हम्म। तो वो जी एग्जैक्टली 90 डिग्री टिल्ट करके देन वी टेक आउट द आउटपुट एंड फिगर आउट कि यानी वो उसका क्या हो रहा है। और जी वो ओसिलोस्कोप या आपका जो भी डेटा एक्विजिशन में आपका सिग्नल आ रहा है, वो आपको हम्म। फिर हम चेक कर लेते हैं कि वो स्टेबल 1G पे कांस्टेंट लाइन आ रही है या नहीं आ रही है। और उसके हिसाब से देन वी कैन एडजस्ट द ऑफसेट ऑफ द इन द सेंसर। अगर जी वो 1G से ज़्यादा ऑफसेट हो रहा है तब उसको वो सेंसर का एडजस्टमेंट, जो नल एडजस्टमेंट ये होता है, वो स्क्रू से उसको ये करना होता है, ये पोटेंशियोमीटर होता है जो वो। अभी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये लगे हुए हैं, हम्म। तो सपोज अगर हमारे पास जो हम रिकॉर्डिंग जो हो रही है इसकी, तो हाँ हाँ उसमें आप जो हमारे पास जो अभी रिसेंट डाटा है और उस सेम इंस्ट्रूमेंट्स का जो पास्ट डाटा है, तो उस दोनों को, उस डाटा से हम लोग चेक कर सकते हैं कि इज देयर एनी ड्रिफ्ट और कोई प्रॉब्लम है उस इंस्ट्रूमेंट्स में या कुछ। देखिए ड्रिफ्ट का यानी एज इट इज़ हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की बात नहीं है, क्योंकि हम्म। वी विल वंस वी प्रोसेस द डेटा तो जो भी ड्रिफ्ट होगा वो तो हम वैसे भी एलिमिनेट कर देंगे, ओके। है ना। जब हम वो बेसलाइन एडजस्टमेंट करेंगे तो जो कुछ भी अगर ड्रिफ्ट है भी अगर इंस्ट्रूमेंट हम्म। में, तो जी दैट विल जी। बी एलिमिनेटेड, सो दैट इज़ नॉट ओके एन इशू एट ऑल। ओके ओके। तो जी 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 my only concern about drift is about the usable range that we have। जी जी जी। क्योंकि वो ड्रिफ्ट अगर ज़्यादा हो गया देन वी मे एंड अप not having or very small range in let's say in positive side and very large range in the negative side, तो जी। वहाँ पे फिर डेटा क्लिपिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। तो नहीं, यदि लेकिन उतना हमारा, ज़्यादा लेकिन जो सर हमारा अभी तक एक्सपीरियंस जो है, हम्म। तो डेटा क्लिप होने का तो बिल्कुल इसमें चांस इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो, मतलब प्लस माइनस कुछ में तो हमारा 2G तक है, कुछ में 1G है। हम्म। और आज तक जो हमारा डेटा है
जी। मैक्सिमम ये जो 0.1 जी आप देख रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल से 1 या 2 इवेंट्स में आया है, हाँ और हाँ। आई थिंक इससे ज़्यादा कभी मैक्सिमम डेटा जो है हमारा इससे नीचे ही रहा है। जी जी। तो इसलिए मतलब उसके हाँ, क्लिपिंग का तो चांस बिल्कुल मुझे लगता नहीं कि कोई क्लिप का चांस होना चाहिए इसमें। ये बात तो सही है कि 1G जी अगर आ गया तब तो यानी वो तो प्रलय है। जी जी तो उम्मीद करते हैं कि 1G हमें कभी ना देखना पड़े। जी। नहीं, लेकिन हमारा जो खुद का भी अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, जो हाँ। भी डेटा हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी। हमने इसके ऊपर है ना काफी अपनी तरफ से जो हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से जो अटेन्यूएशन लॉ है, सारे अटेन्यूएशन लॉ के कंपैरिजन में हम लोगों ने ये एक्चुअल में जो डेटा है वो देखा है। खाली जो है ना पीजीए का है, फ्री फील्ड का डेटा हम लोगों ने देखा है, जी। और उसमें देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस एक्चुअली, हाँ हाँ। कि जो जो थ्योरेटिकल हम कैलकुलेट करते हैं पीजीए वैल्यू, जी। और जो एक्चुअल में रिकॉर्ड हो रही है, हाँ हाँ। तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है आता है उसके अंदर। अच्छा अच्छा। अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस है, पूरे जितना भी डेटा है, कहीं पर भी बहुत ही रेयर कोई ऐसा हुआ है कि जो ऑलमोस्ट जो थ्योरेटिकली जो अटेन्यूएशन लॉस हमने लिया है और जो हमने इससे मेजर किया है एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट से, तो कुछ दोनों में जो है कुछ मैचिंग रहा। अदरवाइज मतलब 10 टाइम्स 15 टाइम्स ऐसे आता है, 5 टाइम्स लाइक दैट, अच्छा। बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। ओके। जी। तो और मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो हिमालयाज में जो है, जो हमारा हम लोग इसलिए इसके लिए कि जो अटेन्यूएशन लॉ पर्टिकुलरली जो हिमालयाज के लिए जो दूसरे अटेन्यूएशन लॉ हैं, ये हिमालय में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है सर। हाँ, हिमालय हैज़ ए डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट यानी कॉम्प्लिकेशंस। एक तो जी it is not only because of the geography, it जी। is also because of the topography. टोपोग्राफी है प्लस, जी, प्लस आई थिंक ये जो इसका जो थ्रस्टिंग एनवायरनमेंट है हिमालय का, हाँ हाँ। दिस ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग समथिंग। हाँ, यानी वो तो जी इसीलिए मैंने कहा ना कि वो तो एक तो जी जियोग्राफी हो गया कि आपकी फॉल्ट जी ज्योमेट्री क्या है, कैसी है, जी जी और जी यानी जी इट इज़ नॉट स्ट्रेट प्लेन, काफ़ी आपके फॉल्ट्स जो हैं वो कर्व्ड हैं, जी और उसके मोशन पैरामीटर्स काफ़ी अलग हो जाते हैं। जी जी और जी यानी नॉट, एंड द प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट दैट कि यानी ये भी अगर फ्लैट टेरेन होता तो उतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन बिकॉज जी। ऑफ योर माउंटेनियस टेरेन, तो हम्म। कई जगह आपके वो यानी वेव्स का फोकसिंग एंड डीफोकसिंग इवेंट यानी दैट इज़ आल्सो टेकिंग प्लेस। जी तो जी जी कई जगह जो है कि आपका यानी किसी भी मॉडल से मैच करेगा ही नहीं, अगर वो फ्लैट टेरेन के लिए आपने मॉडल यानी डेटा प्राइमरीली फ्लैट टेरेन रिकॉर्डेड डेटा है, तो आपका हिल टॉप पर तो बहुत ही मुश्किल है। जी 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 तो बहुत पहले जब हम हिमाचल का नेटवर्क में मेंटेन करने के लिए एक बार मैं विज़िट पे गया था, हमारा जो जी हिमाचल प्रदेश का स्ट्रॉन्ग मोशन नेटवर्क था, जी जी तो वो जी पहली बार मैंने फील्ड विज़िट की हमारे इंस्ट्रूमेंट्स देखने के लिए यहाँ ज्वाइन करने के बाद। जी जी तो आई वाज सरप्राइज कि यानी हमारे पास यानी जब हम नेटवर्क भी मेंटेन कर रहे थे, और इतना डाइवर्स लोकेशन है, इतना अल्टीट्यूड वेरिएशन है, कुछ तो जी। वहाँ पे नरकंडा में ऊपर बिल्कुल ऊपर लगा रखा है, कुछ हम्म हम्म यहाँ पे हम्म नीचे बाघी जो उधर है मंडी के नीचे, वो बिल्कुल वैली के नीचे घुसा हुआ है एक जंगल में बीचों बीच। जी। तो इतना ज़्यादा अल्टीट्यूड वेरिएशन है, तो उसका, और हमारे पास कोई अल्टीट्यूड रिकॉर्ड ही नहीं था हम्म। कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स के हम सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रिकॉर्ड कर रहे हैं और अल्टीट्यूड का कोई जिक्र नहीं कहीं। और हम्म। दैट वाज अ मेजर का प्रॉब्लम, क्योंकि कोई मुझे ट्रेंड ही नहीं दिख रहा था जब मैं डेटा एनालाइज करता था। तो हम्म। यानी बड़ा मुश्किल था कि कोई, आई वाज अनेबल टू फिगर आउट कि भाई यानी इसका कोई कोरिलेशन तो बैठे कि डिस्टेंस तो यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आपका सिमिलर आ रहा है, लेकिन द ग्राउंड मोशन characteristics are very different. They do not, यानी they seem to be not following any pattern. जी तो वो जब साइट विजिट की तब पता चला कि इसमें तो थर्ड डायमेंशन हमने
कभी कंसिडर ही नहीं की है। जी और वो थर्ड डायमेंशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जी दैट एक्चुअली इन अ वे गिव्स एन आइडिया अबाउट कि टोपोग्राफी क्या है रीजन की, एंड जी 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 दैट विल गिव एन आइडिया कि हम्म, कैसे करेंगे। अब 90s में यानी 98 में, 99 में गया था, 2000 में गया था, जी जी उस जी समय जी अल्टीट्यूड मेजरमेंट वाज स्टिल मच ऑफ ए प्रॉब्लम। जी उतना जी एक्यूरेट अल्टीट्यूड मेजरमेंट्स होते नहीं थे। जीपीएस हम्म, से अल्टीट्यूड मेजरमेंट could be off by anyway anything around factor of 2 or so। जी जी लेकिन अब तो वी हैव सफिशिएंट रिजोल्यूशन, अल्टीट्यूड जी मेजरमेंट्स भी जी जी बड़े नहीं, एक्यूरेट अल्टीट्यूड मेजरमेंट्स आ जाते हैं, और जी जी अल्टीमीटर्स भी अब काफ़ी सस्ते हो गए हैं, एंड हैंड जी हेल्ड जी अल्टीमीटर्स आर अवेलेबल इजीली। जी 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 तो वी शुड इंक्लूड दैट इंफॉर्मेशन आल्सो इन आवर ओके ऑल दीज जी इंस्टॉलेशंस। जी 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 यानी जी आइडिया वही है कि यानी ये जी एक बार का एक्सरसाइज होती है, लेकिन जी 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 दैट इम्प्रूव्स द डेटा क्वालिटी बाय वेरी वेरी, यानी इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन जी यूटिलाइजिंग द डेटा, जी कि जी कितना जी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके साथ, अपार्ट फ्रॉम द एक्सेलरेशन ट्रेस, हाउ मच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल that will जी help in interpretation of the data। बिल्कुल ना? जी जी नहीं नहीं ये थर्ड डायमेंशन डेफिनेटली इट विल ऐड सम बेटर जी हाँ। तो जैसे इस ट्रेस में हम देखें जी तो सर एक मेरा पॉइंट और है कि जी अभी जो हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं तो उसमें अगर कुछ चीजों को चेक करना है हम लोगों को हाँ हाँ तो आप थोड़ा हमें गाइड कीजिए कि अगर उसका कैलिब्रेशन चेक कराना है या और कुछ इफ यू फील जैसे हम लोग हमारे पास रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे हैं और आपको जो पुराने सेम इंस्ट्रूमेंट्स का पुराना डाटा भी मिल जाएगा अभी ऑलमोस्ट हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स का बैक डाटा नहीं हम्म। ऑलमोस्ट जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास जी वो सब में जनरली पिछले 4-5 ईयर्स में कुछ ना कुछ अर्थक्वेक्स जरूर रिकॉर्ड हुए हैं हम्म। हर एक जगह जी तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ में ये अवेलेबिलिटी है तो जी अगर अभी इस समय कुछ हमको अपने इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ चेकिंग करना है इफ यू सजेस्ट समथिंग या उसका कैलिब्रेशन जो है ना चेक कराना है या कुछ है तो वो थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए जिससे कि हम लोग उसको है ना एडवांस में एक्शन ले पाए ठीक है ठीक है। वो तो जी है ना, एज लॉन्ग एज द इंस्ट्रूमेंट्स आर वर्किंग। देखिए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग मोशन इंस्ट्रूमेंट्स एंड seismological इंस्ट्रूमेंट्स। जी 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 कि स्ट्रॉन्ग मोशन इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइन टू बी वेरी रगड, जी क्योंकि बहुत ही वायलेंट शेकिंग में उनको काम करना होता है, तो दे आर डिजाइन टू बी वेरी रगड। जी जी और जी साइज्मोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं, उनका जी यानी थोड़ा सा झटका लग जाए तो दे में यानी गेट डैमेज्ड आल्सो। यस यस तो इसीलिए कैलिब्रेशन वगैरह दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर साइज्मोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जी जी बिकॉज जी बट ये स्ट्रॉन्ग मोशन एक्सेलेरोग्राफ्स वगैरह जो होते हैं वो तो बनाए ही इतने रगड जाते हैं, इतने जी रगड डिज़ाइन होते हैं कि जनरली इनको यानी आपको बार बार यानी चेक करने की ज़रूरत होती नहीं है। जी जी लेकिन जी वी विल डेफिनेटली, यानी जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पूरा एक हमारा मेंटेनेंस का पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर वी कैन इवॉल्व कि भाई जी जब भी हम मेंटेनेंस विजिट पे जाएं तो हमें क्या क्या करना चाहिए साइट पर। जी जी वो जी एक बिल्कुल चेकलिस्ट की तरह की एक हम डेवलप कर लेंगे, सो जी दैट जी यानी एवरी मेंटेनेंस विजिट विल हैव टू जस्ट गो बाय सीक्वेंस की इसके बाद क्या क्या करना है, यानी हर जी इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या देखना है, और उसके बाद जी अप्रोप्रिएटली जब वो क्योंकि हम लोग ये कर सकते हैं सारे जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे वो सब के सब जो है ना हमने एएमसी में रखे हुए हैं जी जी और जनरली ये है कि वो जो कंपनी का जो इंजीनियर है वो साल भर में 2 बार तो विजिट करता ही करता है उसको देखने के लिए अच्छा नॉर्मल अगर इफ इट इज वर्किंग फाइन और अगर कोई बीच में प्रॉब्लम आती है तो देन ऑल्सो दैट टाइम ऑल्सो दे विजिट और
तो ये और बाकी हम लोग जो ना कंटिन्यूअसली जैसे यहाँ पर है ना कुछ जो हमारा ऑनलाइन है डाटा, जी, तो मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स की जो मतलब हेल्थ चेकिंग वगैरह है ना, वो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, अपना हेड ऑफिस से भी, राइट, राइट। वो वहाँ से भी चेकिंग कर सकते हैं उसमें। अ, सो दैट्स नाइस। अच्छा, मैडम आप ये वाला डेटा देखिए जो ये आखिरी वाला डेटा है, आखिरी के दोनों डेटा एक्चुअली। जी सर। तो आप इसमें देखिए, इसमें फ्रॉम दिस वी कैन गेट एन आइडिया कि हमारा एंड ऑफ इवेंट थ्रेशोल्ड क्या होना है, क्योंकि ये जो बिगनिंग ऑफ इवेंट है दिस विल बी क्लोज टू 1 आई थिंक। आप ये चेक कर लीजिए यहाँ पे, हमारा ये बिगनिंग ऑफ इवेंट, ये जहाँ से ये स्टीप राइज शुरू हुआ दैट विल बी द बिगनिंग ऑफ इवेंट, और उसके बाद ये सेटल हो गया है टू अ वैल्यू विच इज़ स्मॉलर देन दिस। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली मुझे ये 0.8 या 0.9 लग रहा है। आप ये वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए एंड दैट वी कैन डिसाइड कि दैट विल बी द एंड ऑफ इवेंट ट्रिगर, जस्ट ठीक है। है ना। तो ये शायद 0.8 या 0.9 ही है। अच्छा, इसमें सर एक मेरा पॉइंट और है, जी। जैसे अगर आप इसको देखेंगे, कोई भी हम डाटा लेते हैं तो ये जो बिफोर ट्रिगरिंग, बिफोर इवेंट, जी, this level is slightly higher, although we do not have any data here in this area. हाँ हाँ, But here you are feeling, we are seeing some vibration level at the end, but this yellow line, it has a lower trend जी हाँ, जी basically. हाँ। Yeah. So why it is like that? सर ये जो यहाँ से हमने किया ना, तो जी ये तो जैसे लॉन्ग टर्म विंडो हमारी यहाँ पे है जी और शॉर्ट टर्म विंडो थोड़ी सी एडवांस है यहाँ पे सामने। जी तो अभी तो ये दोनों ही सेम वैल्यू पे चल रहे हैं, और जैसे ही ये शॉर्ट टर्म विंडो यहाँ पे आती है जहाँ से डेटा आना शुरू हुआ, और लॉन्ग जी टर्म विंडो अभी भी यहाँ पर है जिसमें कि कोई एनर्जी नहीं है, तो देन इट सडनली शूट्स अप द रेशो। शॉर्ट टर्म एवरेज इज मच लार्जर देन द लॉन्ग टर्म एवरेज, है ना। तो जी इसीलिए ये जी वैल्यू एकदम शूट कर जाती है, एंड दैट इज जी व्हाट जी द इंडिकेट्स द ट्रिगरिंग यानी जी इवेंट स्टार्ट एंड डिटेक्शन। जी 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 अब जी ये जब हमारी ट्रेन जो है, विंडो ट्रेन जो है कि शॉर्ट टर्म विंडो हमारी आगे है, लॉन्ग टर्म विंडो पीछे है, इफ वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवेंट, तब ये लॉन्ग टर्म विंडो इज स्टिल मेजरिंग दिस स्मॉल वाइब्रेशंस, ओके ओके और शॉर्ट टर्म विंडो हमारी नीचे चली गई है ना। तो शॉर्ट टर्म विंडो हमारा एंड ऑफ इवेंट जो यहाँ पे होना है वो तो आ गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म विंडो इज स्टिल मेजरिंग द ट्रेमर्स। ओके ओके तो अब डिनोमिनेटर बढ़ गया है, ओके न्यूमरेटर में हमारा वी आर मेजरिंग समथिंग लाइक दिस, लेकिन डिनोमिनेटर इज मेजरिंग समथिंग लाइक दिस, जी जी तो इसीलिए इट विल गो डाउन, ओके ओके and that is why it cannot be same, यानी वो beginning of event and end of event cannot be same value. End of event has to be smaller than the beginning of event threshold. ओके ओके So so this is fine. So this is actually very good quality record. यानी इस तरह का रिकॉर्ड एक हमारा यानी आई पर्टिकुलरली लाइक दिस, क्योंकि धर्मशाला अर्थक्वेक का रिकॉर्ड है, जी 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 वो भी कुछ इसी तरह का है, जी क्योंकि आई पर्टिकुलरली यूज दैट रिकॉर्ड फॉर सम ऑफ माई प्रेजेंटेशंस टू अंडरलाइन समथिंग, कि भाई हेडिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और नीचे ये अर्थक्वेक केस आ जाता है। So that's a very nice record to use in that. एक short burst है, उसके बाद it's more or less a very small tremor. जी जी तो what I was saying कि ये जो STA LTA ratio है, that also correlates well with our what we call as the strong motion duration, and that we have to provide along with the डेटा जो वॉल्यूम 3 जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन हम देते हैं उसमें।
सो स्ट्रॉन्ग मोशन ड्यूरेशन का पर्पज़ ये है कि यानी टोटल इवेंट तो बहुत लंबा है, यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी लंबा है, लेकिन जो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंट वाइब्रेशंस हैं दे आर ओनली अबाउट अप टू दिस, कि यहाँ से जी लेके लेट से जी यहाँ तक ही जी कुछ है। जी 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 है ना? तो दैट कैन ऑल्सो बी, यानी अगर हम ये एस टी एल टी रेशो ले लें तो दैट कैन इट सेल्फ फ्रॉम दिस कर्व इट सेल्फ वी कैन डिफाइन what is the strong motion duration of the event, although there are different definitions of strong motion duration also. So we can try to find out what is the, how the different definitions of strong motion duration they correlate with the STA LTA ratio, and that will also probably give us some kind of यानी जब हम एस टी एल टी रेशो कर ही रहे हैं तो फ्रॉम दिस प्लॉट इट सेल्फ वी कैन डिफाइन व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग मोशन ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट. So, but suppose if we, yeah, if we want to see what is the slow motion duration for this event, so how much you do you think it is? देखिए उसका स्ट्रॉन्ग मोशन ड्यूरेशन के जो डेफिनेशंस हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग डेफिनेशंस प्रपोज की हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड विच इज़ इजी टू कंप्यूट इज़ द 90% ड्यूरेशन. 90% का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी ट्रेस को इंटीग्रेट करना शुरू करें, ए स्क्वायर वर्सेस टी प्लॉट कर दें, ये जैसे ये एक्सेलरेशन है, सो आई स्टार्ट प्लॉटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. सो ये जो भी वैल्यू एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम है, आई जस्ट कीप ऑन एडिंग क्यूमुलेटिव एनर्जी, ए स्क्वायर एट T1 प्लस ए स्क्वायर एट T2 प्लस ए स्क्वायर एट T3. तो इस तरह से, तो वो टोटल एनर्जी अगर आप देखें तो इस तरह से ज़ीरो से शुरू होके वो स्टार्ट्स बिल्डिंग अप एंड देन अगेन इट सैचुरेट्स एट सम कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आता नहीं है. जी है ना? तो ये जो आपका एनर्जी कर्व आ गया, इसमें वी ड्रॉ द 95% लाइन और 5% लाइन कि एंड ऑफ इवेंट पे टोटल एनर्जी कितनी थी, उसका 95% और उसका 5%. तो ये हमारे दो पॉइंट्स आ जाते हैं T1 एंड T2. जी और बीच में जो है दैट इज द ड्यूरेशन इन विच 90% ऑफ द एनर्जी वाज सप्लाइड, अर्थक्वेक एनर्जी. है ना? लेट मी ड्रॉ दिस. जी एक मिनट. मुझे ज़रा अपना राइटिंग पैड कनेक्ट करने दीजिए. तो जैसे मुझे ये निकालना पड़ेगा. This is surprising. ओके, हाँ. तो जैसे
event and AT, I define the energy of this particular time history as sigma I so at every instant I will square the value of the amplitude, and so yeah, I can accumulate this contribution. So square the contribution, and then I can plot it as a function of time. So if I plot this as a function of time, then it will start with 0 and gradually it will take up this value, stabilizes at the end of the event. So whatever is this total value, E final, okay, if this is the maximum value energy that is there, and I figure out what is the 0.95 of E max, so that time is let's say this is T2, and I find out what is the 0.05 of E max, and that time is T1. So this T1 minus T2 or T2 minus T1 this is known as 90% energy and strong motion duration. So it is during this time from T1 up to T2, 90% of the energy contained in this accelerogram is accumulated, and that is that's a very stable parameter, and it was originally proposed by Trifnak and Brady. So this is very widely used definition for strong motion. 90%, it is referred to as 90% strong motion duration, and very commonly used for engineering analysis. Of course, Trifnak subsequently followed. This was 90% duration was proposed in 1976, I think. Trifnak, of course, followed it up in 1994 with more of band pass filtering and looking at only high frequency contribution of certain frequency band. What is the duration of the band pass filtered in some frequency range, and what is the duration of that event. So that is unnecessarily complicating things. For all engineering purposes, if we can record this 90% duration, that is a great help in assessing the damage potential of the event. Damage potential is important in the sense I try to explain this in my normal lectures about the need for the duration or exposure time, because if we can because structure, any system requires some time to realize the presence of an excitation and respond to the situation.
So if the excitation doesn't persist long enough, then the system response is obviously not going to be triggered. So if one hammer blow, a very large intensity pulse, just one major pulse and then it is withdrawn, doesn't do any damage to the structure. So that impact kind of high impact load does not do much to for any engineering structure. But if it is sustained over a period of time, or if it is a repeated impact loading that is happening over a sustained period of time, then obviously it makes a difference, and it uh, 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 it inflicts some significant damage. So just amplitude itself on its own does not tell us about the uh, intensity or damage potential of the motion. For example, this been only one peak here, devoid of all this shaking here. So this single isolated peak, maximum peak, it might be of 0.1 G or even 0.5 G or even 1 G. That isolated peak is not going to do any damage to the structure. But over a period of time, there are some similar energy contributions coming in, and system is receiving continuous supply of energy. Then over a period of time, then obviously it makes a lot of difference to the structural system. And that's why the importance of this strong motion duration. So this strong motion duration is an important aspect of uh, engineering utilization of the ground motion, and it figures prominently in assessing the damage potential of any time history. So that is the importance of all these supplementary information that goes in volume 3 data, that anybody who wants to use a time history, they can consider it by using by taking the records which have higher damage potential, so that we may come up with design criteria which is going to be that is going to lead to a hazard estimation which is going to be conservative and severe and more demanding on the structure, so that a future structural system that is designed using that criteria will remain safe. So that's the basic idea. So how are we going about this? About our header portion, madam had started some work on the preparation of the headers. Hello? Hello, Pallavi, are you there? Yes. हाँ सर हेलो. जी हाँ मैडम. तो हमारा हेडर कन्वर्शन का यानी यू हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट हेडर कन्वर्शन आई थिंक. तो उसमें हम सर डेटा कन्वर्जन इन द कॉस्मोस फॉर्मेट सर जो लास्ट आपने बताया था, तो वी हैवंट येट स्टार्टेड विद द स्क्रिप्टिंग येट. वी हैव नॉट स्टार्टेड दैट वर्क, बट वी हैव गॉन थ्रू द इंफॉर्मेशन. And sir, for that we will definitely need help from your end also, because to convert it into that all that 45 line header, right, to sort out that what all information, so our data we have to put in, what we have and what we have to. Okay, so be doing it, sir, like maybe in a week or so. So what are the information that we have? Yes, let's sir. see. So all our data that we have is in this format. This is NHPC format? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay, so This is a file, sir, I think, which we should not. yes, I am accessing it from the folder Uh-huh. drive folder that you had shared. Okay, sir. Huh. So I guess this is the uniform format for all NHPC data, isn't it? NHPC का सारा डेटा Yes, इसी sir. फॉर्मेट में होगा. वो हाँ हाँ सर, इसी फॉर्मेट में है. ठीक है. So now this is our input file, primary input file, and this data we need to transfer it into Cosmos format. That's the problem, isn't it? हम्म. Yes, हाँ हाँ. ठीक है. So let me work out. I will have to uh, go through Octave manual for string processing. क्योंकि my all programs for strong motion data were written when I was still working in Fortran. So मेरे सारे I'm and all of us are probably from the Fortran age. हाँ सर, we are also. So, but I will let me go through the Octave manual about how the strings are processed and how that can be. I mean, I'm sure we can develop a script, Octave script, which will read whatever information is there in this particular file, and then uh, we can write it out in the Cosmos format. हम्म. So ठीक है once सर. we finalize that script, then it can be the entire process can be automated. Right. So in our next interaction next week, we will let me work out. Let me work on that thing, the script, and then we will discuss our how that script works and if there is any problem. I'll try to share that script before we meet. So we next will week. also try from our end. Yeah. Fine. Yeah. Sir. So I'll try to share That that will be script fine. before And before we our schedule. will be also doing some work and we will be. हाँ ठीक है सर. Tick. Okay. So thanks. I'll stop here. So sir, what is the situation at Roorkee now? Roorkee, it's